All right. So today's topic is biomedical waste management. So why we are studying this topic, biomedical waste management, is uh, I request all the participants to please switch off your mics. All right. So why we are taking this topic is because it is very important topic in one of the measure of infection control. It is one of the part of standard precautions. स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस आपने अभी मे बी पढ़े होंगे या हो सकता है आप आगे की क्लासेस में पढ़े. सो स्टैंडर्ड जो 10 स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस हैं अकॉर्डिंग टू सीडीसी गाइडलाइंस, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ गाइडलाइंस, जो भी 10 स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस हैं उनमें से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड प्रिकॉशन इज बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट आफ्टर hand hygiene. Okay, so uh, why please. Okay, so I'll start the class. Biomedical waste is any waste produced in a hospital during a diagnosis or treatment. The process of biomedical waste follows the cradle to approach, which is characterization, quantification, segregation, storage, transport, and treatment of biomedical waste. The basic principle of good biomedical waste practice is based on the reduce, cycle, and reuse concept. The various methods of biomedical waste disposal are chosen according to their desirability, such as reduce, reuse, recycle, recover, treat, and lastly dispose. And colored bins are used for segregations. So, आप सबको पता है कि स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में एक टॉपिक है ये बायोमेडिकल वेस्ट. एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज देखिए दो तरह के वेस्ट होते हैं. एक होता है जनरल वेस्ट. General waste is the waste which is generated anywhere in the place, whether it is our home or outside the home or any area in the shops, in the malls, everywhere. ठीक है. तो जनरल वेस्ट को कैटेगराइज किया जाता है अभी की न्यू गाइडलाइंस में टू कलर कोडिंग से, दैट इज ब्लू एंड ग्रीन. ड्राई वेस्ट के लिए ब्लू कलर and for wet waste it is green color. But when we are talking about biomedical waste, so biomedical waste में हम general को बिल्कुल हटा देते हैं. So this blue and color green color coding doesn't come in this category. Biomedical waste में आपका entirely different four color codings आएंगी, that is red, yellow, blue cardboard box and then white पंचproof container. So हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे. And it is important because this waste is produced in the hospital setup, not only in the hospital setup but on the other areas also, जहाँ पे पेशेंट का ट्रीटमेंट हो, जहाँ पे चेकअप्स हो या कुछ भी वैक्सीनेशंस हो या कोई भी ऐसी एक्टिविटीज होती है वहां पर ये सारे वेस्ट जनरेटेड होते हैं. सो विल जस्ट मूव इनटू द स्लाइड so that we can study this little elaborated. Okay, so are you all comfortable with this language? Yes, ma'am. All right, thank you so much. Yes, ma'am. Can you see the slide, guys? Yes. All right. Yes, ma'am. Yes, ma'am. All right. So this is biomedical waste management. You know, being an infection control nurse, हम लोग इस चीज पे फोकस नहीं करते हैं. हमारा फोकस मेनली होता है हैंड हाइजीन पे, क्लीनिंग, डिसइंफेक्शन पे. बट वेस्ट को मैनेज करना इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू कंट्रोल द इन्फेक्शन. वाई? बिकॉज बायोमेडिकल वेस्ट के टाइम पे यू कैन गेट सो मेनी ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स, your blood and body fluid exposures or maybe needle stick injury or any further exposures. So इसीलिए इन हजार्ड से बचने के लिए इसको सेग्रीगेट किया जाता है, इनको ट्रीट किया जाता है ताकि ये किसी के भी कांटेक्ट में ना आए, किसी को कोई हार्म ना पहुंचाए. एंड बिकॉज ये कुछ ये जनरेट जो है ये डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, इम्यूनाइजेशन एज इट इज रिटन इन दिस, यू कैन सी इन दिस डेफिनेशन. What is biomedical waste? BMW waste means any waste generated during the diagnosis, treatment, or immunization of human beings or animals or research activities. So because ये सारी activities में से निकला होता है, so it can be hazardous for everybody. जो इसको हैंडल कर रहा है, जो इसको डिस्कार्ड कर रहा है, जो इसको ट्रीट कर रहा है, हर एक के लिए ये बहुत ही ज्यादा hazardous है. And that's why we need to handle it
properly. और आज की क्लास में हम यही पढ़ेंगे, how to handle it and how to treat it, है ना? This is the main important things we are going to do. Sources of biomedical waste. So there are two kind of sources, the major sources and minor sources. Major sources में आपके government hospitals, private hospitals, then your primary healthcare centers, medical colleges, जहाँ पे कि बड़े बड़े आपको पता है कि specimens रखे होते हैं बहुत सारे, so many things are available over there, है ना? And then research centers and paramedical services, blood banks, mortuaries and autopsy centers, बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स एंड प्रोडक्शन यूनिट्स. उसके बाद होते हैं माइनर सोर्सेज. माइनर सोर्सेज में आपका आता है physicians and dentist clinics, animal houses, blood donation camps, vaccination centers, funeral services, acupuncturists, psychiatrist clinics and cosmetic piercing spas. So ये सारे minor source है. यहाँ पर भी थोड़ा बहुत waste generate हो सकता है, right? So ये कुछ particular areas है जहाँ से कि biomedical waste मिलने के chances ज्यादा होते हैं. So we have classified this biomedical waste in 3 different categories. एक होता है नॉन हजार्डियस वेस्ट, दैट इज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल. उसके बाद आता है पोटेंशियली इन्फेक्शियस वेस्ट, जैसे कि ड्रेसिंग, स्वैब्स, लेबोरेटरी वेस्ट, इंस्ट्रूमेंट्स यूज फॉर द पेशेंट केयर्स. एंड देन पोटेंशियली टॉक्सिक वेस्ट जो होता है रेडियो एक्टिव, केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स. सो ये कुछ अलग अलग तरह के वेस्ट होते हैं जिसको हम लोग देखेंगे. And then there are types of waste. Types of waste में infectious waste क्या होता है? Infectious waste is the waste suspected to contain pathogens. Laboratory cultures, waste from isolation wards, tissues, materials or equipments that has been in contact with infected patient and excreta. So जहाँ पर भी infection, definitely biomedical waste का मतलब ही infectious waste होता है, but some particular terminology is given to the different types of waste. So infectious waste में जो waste हमें जिसमें पैथोजेंस कंटेन हो, जैसे कि लैब से जो जनरेट हुआ वो, या फिर आइसोलेशन वार्ड. आइसोलेशन वार्ड में आप लोगों को पता है कि ऐसे पेशेंट्स रखते हैं जिनको एयरबॉर्न डिजीज है या कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस की नीडेड है ना. सो इन दैट केस आल्सो इन्फेक्शियस वेस्ट इज रिक्वायर्ड, इन्फेक्शियस वेस्ट इज जनरेटेड ओवर देयर. देन योर टिश्यू, स्वैब, ड्रेसिंग मटेरियल्स, ये सारी चीजें. So or even the human excreta, urine, whatever waste is coming out from the human body is also infected. उसके बाद आता है pathological waste. Pathological waste में human tissue and fluids, जो भी blood body fluids होते हैं, या फिर fetus, या फिर कोई भी body parts, placenta, ये सारे आते हैं pathological waste में. फार्मास्यूटिकल वेस्ट में क्या आता है आपका? डेफिनेटली आप इसके नाम को सुन के पढ़ के देख सकते हो कि ऑल दी एक्सपायर्ड मेडिसिन्स एंड दैट मेडिसिन्स व्हिच नो लॉन्गर नीडेड. Then genotoxic waste. Genotoxic waste containing cytotoxic drugs often used for the cancer therapy या chemotherapy जो यूज होते हैं. Chemical waste, waste containing chemical substances, laboratory reagents, disinfectants and solvents that are expired and no longer needed. Chemical waste hospitals में basically क्या क्या होते हैं? जो भी आपके material safety data sheet में included होते हैं. I don't know whether you are introduced with the MSDS or not, but let me tell you that all the hazardous materials are kept in a separate cupboard. एक cupboard में रखा जाता है उनको, ठीक है, और उनको फिर एक labeling की जाती है, उनके सारे precautions, वो फ्लेमेबल है कि नॉन फ्लेमेबल है, कोरोसिव है कि नॉन कोरोसिव है, इसकी एक लिस्ट बनाई जाती है. दैट इज कॉल्ड द मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट, MSDS. सो वो सारे केमिकल्स की भी कुछ शेल्फ लाइफ होती है. जैसे कि आपका सोडियम हाइपोक्लोराइड हो गया, माइक्रोजन D125 हो गया, पोविडाइन, ईथर एंड योर एल्कोसेट, योर साइडेक्स, योर क्लोरीहेक्साडाइंस, ethyl, propylene and alcohol, spirits. There are lots of chemicals which are being used in the hospital setups and it has their own shelf lives. So according to WHO guidelines, या तो उसकी expiry date or otherwise from the opening of that bottle till the 2 years. 2 years की mostly shelf life होती है, ठीक है, और until the expiry date is near. So उसके accordingly उसको discard किया जाता है. So that is all generated as a chemical waste. Waste with high heavy metal content, batteries, broken thermometers and gas cylinders. Broken thermometers means which contain mercuries.
गैस सिलेंडर्स हो गए एंड बैटरीज। देन रेडियो एक्टिव वेस्ट फ्रॉम रेडियोथेरेपी, यानी कि अनयूज्ड लिक्विड्स फ्रॉम laboratory research, absorbent papers, urine and excreta. So these all comes under the radioactive waste. You don't need to remember all these criterias. कुछ कॉमन जो कॉमन कलर कोडिंग्स हैं वो मैं आपको एट लास्ट बताऊंगी ना. राइट नाउ आई एम जस्ट गोइंग थ्रू दिस स्लाइड so that you can be aware of all these top categories. लेकिन आपको जो मेन इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान रखना है that I will let you know later on. So BMW प्रोसेस क्या होता है, हाउ टू ट्रीट दिस वेस्ट इज, हॉस्पिटल से ये जनरेट होता है. इन हाउस सेग्रीगेशन होता है सबसे पहले. इन हाउस सेग्रीगेशन कैसे होता है, डिफरेंट कलर कोडिंग्स में, दैट विल बी कम लेटर ऑन. उसके बाद कॉमन स्टोरेज पॉइंट होता है. सारे हॉस्पिटल का जो कूड़ा होता है वो अलग अलग, जैसे आईसीयूज, वार्ड्स या फिर ओपीडीज, माइनर ओटीज, जहां जहां से भी कलेक्ट होता है वहां से सारा कलेक्ट होके ये एक पर्टिकुलर कॉमन स्टोरेज पॉइंट में रखा जाता है, बायोमेडिकल वेस्ट स्टोरेज पॉइंट. वहां पर इन सबको रखा जाता है. देन उसके बाद वहां से ये ट्रांसपोर्टेशन होता है जिस भी कंपनी से आपका टाई अप होता है, ठीक है ना. तो बायोमेडिकल वेस्ट वाली कंपनी का एक ट्रक आता है और वो वहां से सारे कलर कोडिंग के अकॉर्डिंगली सारे वेस्ट को लेके जाता है. ट्रांसपोर्टेशन के बाद अनलोडिंग इन टेम्परेचर स्टोरेज एट CBWTF. वहां पर ये CBWTF एक एजेंसी है जहां पर कि इसको अनलोड किया जाता है और स्टोरेज टेम्परेचर चेक किया जाता है, उसके अकॉर्डिंगली इसको ट्रीट किया जाता है. ट्रीट एज इन इसको लैंडफिल करना है, इसको लाइक इसको काटना है पूरा, या फिर इसको क्रश करना है, या फिर इसको इंसिनरेट करना है. whatever we have to do, that is the treatment of the biomedical waste. It doesn't come in your process being an ICN. You don't need to go through all these things, but you must be aware कि आपके biomedical waste के साथ होता क्या क्या है, ठीक है. And after the treatment it goes for the disposal. So this is how the process of biomedical waste management. Now let's come to the main point, that is the segregation of waste. And please class, please make sure कि आपको ये सारे points एकदम clear होने चाहिए, because at the end of the class I'll ask some of the questions from you guys and I expect the good answer from your side. Okay, so segregation of waste में क्या है, 4 color coding है, yellow, red, blue cardboard box and then white bunch proof container. So yellow is human anatomical waste. Yellow में क्या क्या होता है, human anatomical waste means जितना भी ह्यूमन बॉडी पार्ट्स हैं वो सब उसमें आएगा. एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट, इट कम्स इन दी वेटरनरी हॉस्पिटल, जो जानवरों के हॉस्पिटल होते हैं वहां पे एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट आता है, मोस्टली ओटी एरिया से. जब कोई टिश्यू पार्ट्स काट देते हैं या फिर गॉल ब्लैडर निकाल दिया, सिस्ट निकाल दिए, जो भी अनवांटेड ऑर्गन सब निकाल देते हैं उसको थ्रो करने के लिए येलो कलर में जाता है. सॉइल्ड वेस्ट, जो भी गंदा हो चुका है ब्लड से, स्टूल से, यूरिन से या किसी भी बॉडी वेस्ट से गंदा हो चुका है वैसा वेस्ट. एक्सपायर्ड और डिस्कार्डेड मेडिसिन, सो दिस इज द डिफरेंट कैटेगरी बट इट कम्स अंडर द येलो. हमारे हॉस्पिटल में जो भी डिस्कार्डेड मेडिसिन हैं या एक्सपायर्ड है, जैसे किसी में नाम नहीं लिखा है और आपको पता नहीं है कि मेडिसिन कौन सी है, यू आर नॉट गोना यूज इट, सो आप उसके टैबलेट्स को निकाल के, और ऐसे भी नहीं कि उसको पूरा पत्ता उठा के फेंक दिया, नो, एक एक टैबलेट को आपको निकाल के और उसके बाद उसको along with the wrapper you have to throw it inside the yellow bin. And same process will be done with the expired medicines, only tablets, right? Tablets or capsules. Then chemical waste. Chemical waste आपका जो होता है वो भी येलो में जाता है except the bottles. अगर वो ग्लास बॉटल्स हैं या कुछ है तो that will be discarded in the different color, that I'll come. बट केमिकल वेस्ट जो नॉर्मल केमिकल है that will go into the yellow color bin. उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड अदर क्लिनिकल लेबोरेटरी वेस्ट, यानी कि आपके जो वैक्यूटेनर्स होते हैं जिसके अंदर आप लोग सैंपल्स डालते हो, सैंपलिंग करते हो, राइट. अलग अलग आपके पीटीटी, ईडीटी वाइल्स हो गए, है ना, और आपकी जो डिशेस हो गई जिसमें भी आप यूरिन कल्चर या स्टूल कल्चर के जो बॉटल्स होते हैं वो सारे जो होते हैं माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक के जो वेस्ट होते हैं वो सारे आपके येलो में जाएंगे. ओके, सो देन रेड कलर में प्लास्टिक वेस्ट है. अब इसमें आता है आपका इन्फेक्टेड प्लास्टिक. ओके, इन्फेक्टेड प्लास्टिक सच एज ट्यूबिंग, बॉटल्स, इंट्रावेनस ट्यूब्स एंड सेट्स, catheters, urine bags, syringes without needles and fixed needles, syringes and vacutainers with their needles cut and gloves.
सो ये सारी चीजें आपकी आती है रेड में। यहाँ पे जो वैक्यूटेनर्स की बात आ रही है, दैट इज नॉट द वायल्स। वैक्यूटेनर्स अलग होते हैं जिसमें कि सैम्पलिंग में एक नीडल साथ में उसके अटैच रहती है और उसके थ्रू पेशेंट का सैंपल निकाला जाता है, सो दैट इज कॉल्ड वैक्यूटेनर। वो प्लास्टिक का होता है उसका हब। सो वो पर्टिकुलर जो पार्ट होता है वो सारा रेड में जाता है। सो टू बी क्लियर, टू मेक क्लियर इज, रेड में आपका सारा ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, कोई भी वेस्ट एक्सेप्ट प्लास्टिक, चाहे वो आपका मेटल हो, चाहे आपका वुड हो, चाहे आपका लाइक कॉटन क्लॉथ से बना हो, कुछ भी हो, वो सारा ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट जो आपके ह्यूमन बॉडी के किसी भी पार्ट से टच हुआ है, चाहे वो आपके कोई भी एक्सक्रीशन, आपका स्वेट, स्टूल, यूरिन और ब्लड और व्हाटएवर, उन सबको आप येलो में सेग्रीगेट करेंगे एक्सेप्ट प्लास्टिक एंड ग्लास। प्लास्टिक आपका जाएगा इन्फेक्टेड प्लास्टिक रेड में, only infected plastic, okay, that will be goes into the red. And about the glass, अब अगर ग्लास है, कोई कांच की चीजें हैं, जैसे कि आपकी वाइल्स हो गए, आपके एम्प्यूल्स हो गए, या फिर आपके कोई ऐसे साइटोटॉक्सिक वेस्ट है, या मेटल्स के बॉडी इम्प्लांट्स हैं, ये सारी चीजें आपके किस में जाएंगी? ब्लू में। मेटल बॉडी इम्प्लांट्स मीन्स बड़े बड़े इम्प्लांट्स। अगर हम बात कर रहे हैं what do we call it, oh well, I forget the name, I'll come to that point later, okay. So the thing is कि blue cardboard box means एक बॉक्स होता है नॉर्मल, कोई भी पेटी होती है जो, उसके ऊपर आप ब्लू कलर की प्लास्टिक चढ़ाते हैं, ब्लू कलर की प्लास्टिक से उसको कवर कर देते हैं, वो होती है डार्क ब्लू। एंड मेक श्योर, जनरल वेस्ट का कलर होता है लाइट ब्लू और इसका होता है डार्क ब्लू। सो इन दोनों कलर्स में भी डिफरेंस है, सो डोंट गेट कंफ्यूज। एंड दैट इज नॉट अ डस्टबिन, दैट इज अ कार्डबोर्ड बॉक्स, ताकि उसको खाली करने की रिक्वायरमेंट ना रहे, बिकॉज इसमें सारे ब्रोकन या डिस्कार्डेड कंटामिनेटेड ग्लासेस हैं, तो इसलिए उसको जस्ट ऑन द स्पॉट पैक करके और फिर उसको साथ के साथ ही डिस्कार्ड कर दिया जाता है, ओके। सो दिस इज हाउ वी यूज टू सेग्रीगेट द ब्रोकन एम्प्यूल्स, वाइल्स, ग्लासेस, बॉटल्स इन दी ब्लू बिन। एंड अकॉर्डिंगली हम लोग इसमें साइटोटॉक्सिक वेस्ट जो मेटल वाले होते हैं या ग्लास के होते हैं वो सारे भी ब्लू में जाएंगे, एंड मेटेलिक बॉडी इम्प्लांट्स, ठीक है, वो सब कुछ आपका ब्लू में जाएगा। देन गोज टू द वाइट। वाइट इज sharp waste including metals like needles, syringes with fix। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सब कुछ में मेटल जा रहा है, बट नो, द बिग मेटालिक वेस्ट जो इम्प्लांट्स होते हैं बड़े बड़े, जो शार्प नहीं है लेकिन बड़े बड़े हैं, उन सबको ब्लू में डालेंगे। लेकिन दोज हु आर शार्प एंड पॉइंटेड एंड वेरी टाइनी, थिन, पतले पतले जो पॉइंटेड होते हैं, नीडल्स के जैसे पतले पतले होते हैं, वो सारे जाएंगे आपके पंच प्रूफ कंटेनर में, बिकॉज उस वो सबसे ज्यादा होते हैं नीडल स्टिक इंजरी कराने के लिए। लाइक we are more prone to get needle stick injury through the sharps, okay. So इसमें क्या क्या जाएगा आपका? needles, आपकी syringes with needles, not without needles, okay. needles from needle tip cutter or burners, scalpels, blades, etc. so syringes जो फिक्स नीडल के साथ हो, अब जैसे कि okay, that is a part of my question, so I'm not gonna reveal it right now, okay. So make sure कि आप अगर syringes के साथ needle attached है, fixed है, so you will discard it in your puncture proof container. Otherwise if you can remove the needle, तो needle आपकी जाएगी puncture proof में and your syringe will go inside the red bin, okay. नाउ कलेक्शन एंड स्टोरेज, इसको कलेक्ट कैसे किया जाता है, स्टोर कैसे किया जाता है, दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। आप देख सकते हो इसमें क्या लिखा हुआ है। Collection of BMW involves different types of containers for different sources of biomedical waste. Okay, 100% collection should be achieved, and bins and bags should carry biohazard symbol representing the nature of waste. So देखिए, ये है आपके हाउसकीपिंग स्टाफ्स जो आपके जितने भी वार्ड का जो जनरेटेड वेस्ट है वो एक बड़ी सी ट्रॉली में लेके जाते हैं। इट कैन बी अ बिग बकेट, जो एक व्हाट शुड आई से 50 लीटर्स की बड़ी बड़ी बकेट्स होती हैं विद द कैप, वी कैन यूज दैट ऑन द ट्रॉली। और या फिर एक ऐसे ही टिन वाले जो बड़े बड़े ऐसे वाले जो कंटेनर्स होते हैं, यू कैन यूज एनीथिंग, बट इट शुड बी कवर्ड। इसमें लिड लगा होना चाहिए। हर एक डिफरेंट वेस्ट के लिए डिफरेंट बिन्स होने चाहिए, डिफरेंट ट्रॉलीज। यानी कि अगर वो 4 डिफरेंट लेके जा रहा है तो 4 डिफरेंट के लिए एटलीस्ट उसको 3 बार तो उसको चक्कर लगाना ही होगा। एक रेड कलर की ट्रॉली होगी, उसमें आपका रेड वेस्ट ही जाएगा। एक ब्लू कलर की ट्रॉली होगी, उसमें आपका कार्डबोर्ड बॉक्स और साइड में पंच प्रूफ कंटेनर, यू कैन कैरी बोथ टुगेदर। जो येलो होगी उसमें आपका येलो ही जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से उसको
इसको ले जाना है. सो बीइंग एन इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उन्हें चेक करो कि वो वेस्ट को कैसे मैनेज करते हैं. व्हेन आई गोज इन द राउंड, आई ऑलवेज सी कि क्या सारे हाउसकीपिंग स्टाफ ने हैवी ड्यूटी ग्लव्स पहने हैं कि नहीं पहने, है ना, और वो लोग सारे जितने भी जो वेस्ट है उसको मिक्स तो नहीं कर रहे हैं, उसको अच्छे से टाई कर रहे हैं, उसमें सिंबल्स लगे हैं कि नहीं. एवरीथिंग आई यूज्ड टू चेक ड्यूरिंग माय राउंड्स इफ आई एम डूइंग दी बायोमेडिकल वेस्ट. ऐसे तो सारी चीजें हमें चेक करनी पड़ती है, इंक्लूडिंग ऑल स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस that includes your hand hygiene, your cleaning, disinfection, biomedical, needle stick, and then vaccination record. And there are a lot of things for the ICMs, you know. But the thing is, आपको पता होना चाहिए कि जब आप राउंड्स पे जा रहे हो तो आप उसमें क्या क्या चेक करोगे. सो मेक श्योर कि आपके हाउसकीपिंग स्टाफ ने हैवी ड्यूटी ग्लव्स पहने हो, कॉमन ग्लव्स नहीं, जो एक लेटेक्स के हैवी वाले मोटे वाले ग्लव्स होते हैं वो उनको पहनना है. दैट इज मैंडेटरी फॉर देम. दे शुड वेयर देयर मास्क, दे शुड वेयर देयर एप्रन्स इफ इट इज रिक्वायर्ड. ओके, सो ये इनको पहनना है. इनकी ट्रॉली क्लीन होनी चाहिए. जब एक बार ये डस्टबिन, ये सारा चीजें जो है मेन स्टोरेज पॉइंट में डिस्कार्ड कर देते, तो उसके बाद इनको इनकी ट्रॉली को सोडियम हाइपोक्लोराइड से क्लीन भी करना है. दिस इज इम्पोर्टेंट. ये नहीं कि उसमें कूड़ा ऐसे ही रखा हुआ है, उसमें से स्मेल आ रही है या गंदा है या किसी के लिड टूटे हुए, ये नहीं करना. ट्रॉली शुड नॉट बी ओवरफिल्ड एंड ओपन एज इट इज, एज यू कैन सी ऑन दिस पिक्चर. पीपीई नहीं पहना है, ओवरलोडेड ट्रॉली है, कूड़ा इधर उधर से गिर रहा है ना, ऐसा कुछ नहीं करना है. इट शुड बी प्रॉपरली लॉक्ड एंड सील्ड. ठीक है. नाउ ट्रांसपोर्टेशन, अकॉर्डिंगली ट्रांसपोर्टेशन जो है, ट्रांसपोर्ट ट्रॉलीज आर शुड बी इनक्लोज्ड विद द व्हील बैरोस. उसमें व्हील्स लगे होते हैं डेफिनेटली, सो दैट दे कैन जस्ट मूव द ट्रॉली इजीली. मैनुअल लोडिंग शुड बी अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल, बट आई डोंट थिंक इट्स possible anywhere because somehow they have to do the manual loading. Manual loading तो करनी ही पड़ती है, ऐसी कोई चीज है नहीं जिसके थ्रू पिंस उठाया जाए. बट यस, मेक श्योर कि अगर उन्होंने हैवी ड्यूटी ग्लव्स पहने तो उनको नीडल स्टिक इंजरी होने के कम से कम चांसेस होंगे, राइट. सो वो लोग बस उसको डस्टबिन को उठाएंगे. आपका पॉइंट होता है कि आप अच्छे से डस्ट सारे जितना भी जो वेस्ट है उसको प्रॉपरली आप सेग्रीगेट करो. ये नहीं है कि शार्प्स आप रेड में डाल रहे हो, रेड वाला येलो में डाल रहे हो. मिक्सिंग ऑफ वेस्ट शुड बी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, यू शुड नॉट डू. क्योंकि आप ऐसा करके अपने आप को भी लाइफ के खतरे में डाल रहे हो और उस पर्सन को भी जो इसको हैंडल कर रहा है, क्योंकि उसको तो नहीं पता. उसे ये पता है कि कौन से में कौन सा कूड़ा होता है, दैट द ओनली थिंग ही नोज. लेकिन आपने अगर गलती से कैथेटर के साथ, मान लो अब जैसे आईवी सेट होते हैं, पेशेंट को आप यूज कर रहे हो, आईवी सेट में कई बार क्या होता है, जो नीडल होती है छोटी सी, वो हम उसमें स्टिक कर देते हैं, ताकि उसका जो पॉइंट है आईवी सेट का, जब हमें डीसी करना है, डिसकंटिन्यू करना है फ्लूइड को, तो हम उसके पॉइंट को उस नीडल में फिक्स कर देते हैं ताकि वो कहीं पर टच ना हो. इट्स अ गुड प्रैक्टिस. बट मेक श्योर कि जब आप उसको थ्रो करने जा रहे हो, व्हेन यू आर गोइंग टू डिस्कार्ड दैट आईवी सेट, जो नीडल वाला पार्ट है उसको आप उस पार्ट को कट करके उसे पंचर प्रूफ में डालें, और फिर रेस्ट ऑफ द पार्ट यू कैन थ्रो इन दी रेड. अगर आपने उसको भी रेड में डाल दिया और बाय चांस वो नीडल खुली भी निकली, अगर वो कैप से निकल गई या किसी भी वजह से अगर वो प्रिक हो गई, तो इट इज वेरी रिस्की फॉर दैट पर्सन. सो आपको मिक्सिंग का वेस्ट नहीं करना है. और आईसीएंस होने के नाते आपका ये काम है कि आप अपने स्टाफ को चेक करें कि उनकी ट्रे से लेकर उनके डस्टबिन तक सारी जगह पे कोई भी वेस्ट मिक्सिंग ना हो, सब कुछ सेपरेटली सेग्रीगेटेड हो, सेपरेटली डिस्कार्ड करें. एंड हाउस कीपिंग स्टाफ जो है वो उसको सेफली हैंडल करें. ओके. The bags and containers must be tied and lidded before hauling. Hauling से पहले बैग्स अच्छे से टाई अप होने चाहिए, अच्छे से उस पे गांठबंदी होनी चाहिए, या जो एक टाइंग जो रिबन्स होते हैं छोटे वाले, उससे उसको अच्छे से टाई करना है. उसके ऊपर लेबल लगना चाहिए कि कहाँ का कूड़ा जा रहा है, ठीक है. और हर एक पॉली बैग के एंड इवन डस्टबिन के ऊपर में एक हॉलमार्क लगा होता है बायोमेडिकल वेस्ट का. आई शो यू लेटर ऑन दिस. The driver must be trained to act in case of accidental spillage. अगर गलती से कहीं पे accidental spillage हो गई, तो ड्राइवर ट्रेंड होना चाहिए कि वो कैसे उसको हैंडल करे. And most probably it is handled by the spill kit or the hazmat kit. So treatment and disposal is not something related to your part, but just for the knowledge we can go through it. Before final disposal, biomedical waste must be disinfected. Anatomical waste can be disposed by deep burial.
Syringes to be cut with herb cutter and chemically disinfected with 1% bleaching powder at source of generation before final and disposal into sharp pit. Infected plastics to be chemically disinfected or autoclaved, shredded and recycled and sent for the final disposal to municipal dumps. So this is how they treat the waste. ठीक है ना. फाइनल डिस्पोजल से पहले क्या होता है, बायोमेडिकल वेस्ट जो है प्रॉपरली डिसइंफेक्ट किया जाता है. जो ह्यूमन एनाटॉमिकल या फिर एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट है वो डायरेक्टली डीप ब्यूरियल होते हैं. ठीक है. जो शार्प्स, नीडल्स, स्कैल्पल्स, ब्लेड्स जो भी होता है उन सबको हब कटर से पहले कट किया जाता है. उसको 1% ब्लीचिंग पाउडर से वो डिसइंफेक्ट करते हैं और उसके बाद उसको शार्प पिट में डाल देते हैं, श्रेड भी करते हैं इवन. और जो इन्फेक्टेड प्लास्टिक है उसको पहले डिसइंफेक्ट किया जाता है या फिर ऑटोक्लेव करना है, जो भी करना है वो करते हैं. उसके बाद उसको श्रेड किया जाता है और उसको फिर रिसाइकल किया जाता है. रिसाइकल एंड देन सेंड फॉर द फाइनल डिस्पोजल टू द म्युनिसिपल डंप्स. So this is how they treat all this waste. This is the small, you can see the slide कि रेड में क्या क्या जो रेड वेस्ट होता है उसको ऑटोक्लेव करते हैं, श्रेडिंग करते हैं. ठीक है. येलो वाले को इंसिनरेट करते हैं या फिर डीप ब्यूरियल किया जाता है. ब्लू कार्डबोर्ड बॉक्स का जो होता है जैसे कि ग्लासेस एंड ऑल, उसको ऑटोक्लेव किया जाता है, देन रिसाइकल किया जाता है. लाइट ब्लू मीन्स ऑल द जनरल वेस्ट, उसको लैंडफिल किया जाता है मोस्टली, जो भी जनरल वेस्ट होता है. एंड देन योर वाइट यानी कि पंचप्रूफ कंटेनर, शार्प्स, नीडल्स एंड ऑल, उसको ऑटोक्लेव करते हैं, उसे श्रेड करते हैं, फिर उसे लैंडपिट में डाल देते हैं. एंड येलो साइटोटॉक्सिक मीन्स जो वेस्ट कीमोथेरेपी के दौरान यूज किया जाए जहाँ पे रेडिएशन बहुत ज्यादा होती है, तो ऐसे कुछ साइटोटॉक्सिक वेस्ट होते हैं उसको येलो बिन में डाला जाता है. एंड इवन इफ इट इज अ वाइल, जैसे कि कुछ इंजेक्शन है, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स हैं, तो उसके जो बाकी चीजें तो येलो में डाली जाएंगी और जो वाइल्स हैं उसको ब्लू में डाल के उसको अच्छे से सील करा जाता है और उसमें साइटोटॉक्सिक ड्रग्स का लेबल लगाया जाता है. उसका भी एक अलग से एक इम्प्रेशन होता है, एक लोगो होता है. आई विल शो यू दैट. उसको इंसिनरेट किया जाता है. ठीक है. So this is the treatment of waste. So these are the biomedical waste symbols. You can see ये जो एक फ्लावर जैसा जो निशान आपको दिख रहा है, ये है बायोमेडिकल वेस्ट सिंबल. ये आपके हर एक पॉली बैग में, हर कलर के पॉली बैग में ये सिंबल रहता है, एज वेल एज आपके डस्टबिन में भी ये सिंबल रहता है, और प्लीज जिसमें आप हॉल करते हो सारे वेस्ट को, उसमें भी ये सिंबल रहता है. एंड दिस इज द साइटोटॉक्सिक ड्रग वेस्ट का जो सिंबल है, उसमें ये दोनों सिंबल्स होने चाहिए. So this was the conclusion. As you saw, we have already been through this slide before. Okay, so ये conclusion है. So before conclude all the things or कुछ major points which I'll tell you later, first I will request everybody to just watch this video carefully. It's very interesting video and contains a lot of messages for all of you. So please आप ये video देखिए and then I'll conclude you. कैसे अंकल जी? ठीक हूँ बेटा. अरे जितेंद्र, ये आपने बिना ग्लव्स के सारा कचरा उठा लिया. ये ग्लव्स कहाँ है आपकी? ग्लव्स से पहन के आपको सारा कचरा निकालना है, ठीक है? और आपके बाल देखो किस तरह बनाए हुए हैं. बाल छोटे रखवाइए, ठीक है? जी जी. जाइए आगे से ग्लव्स पहन के ही उठाना सारा कचरा. मेरा नाम है जितेंद्र, मैं तो चला रूम के अंदर, कचरे के डब्बे को क्लीन करने. काम के टाइम पे फोन.
ये फील में भी नहीं आने देते। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन? मैं डिजिटल बैंक से बात कर रही हूँ। अच्छा, बैंक से बोल रही हैं? जी, मैं रंजिता बात कर रही हूँ। रंजिता जी? हाँ जी। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। सर, आप लोन लेना चाहेंगे? हाँ, अरे आप देंगी तो क्यों नहीं लेंगे लोन, बिल्कुल। बहुत अच्छी स्कीम है। हाँ। हेलो। Yes, sir. We had sent the test. Results have come. He is positive. Let us see. There is some history, no? What's his job? Sir, he is a housekeeping staff. इनको needle stick injury हुआ था. हाँ भाई बताओ जितना कैसे हुआ ये? सर मैं ग्लव्स तो रोजाना पहनता हूँ सर, मगर उस दिन फोन आ गया सर, तो जल्दीबाजी में गलती हो गई सर। आपको ये नहीं पता कि एक टाइम पे एक ही काम करना चाहिए? सर मेरा तो रोज का काम है सर, मैं भला गलती क्यों करूंगा सर? वहाँ निडल तो किसी डॉक्टर या नर्स ने छोड़ा होगा ना सर। It's very sad, but he's right. Doctors and nurses make this mistake and भुगतान ये लोग करते हैं. It's just too sad. Anyway, प्रेस कीजिए. What about the post-exposure prophylaxis? Has been Yes, sir. started? We had already started it as per our needle stick injury protocol. सर मैं ठीक तो हो जाऊंगा सर? देखते हैं, देखा जाएगा अभी, देखते हैं। टेस्ट के लिए बोल रखा है और दवाई मिल रही है, देखा जाएगा, देखेंगे भी। गुड इवनिंग सर। हाँ, ड्यूटी ऑफिसर सर। हाँ, so duty officer is here, right time. यार ऐसा है, don't you issue these guys gloves and masks and all that? नहीं सर, ग्लव्स पीपीई पूरा हम प्रोवाइड करते हैं और वी इंश्योर करते हैं एज द डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कि ये सारी चीज़ मिले इनको। तो फिर ये कैसे हो गया? Don't they get trained? Do they have some official training or not? नो सर, वी हैव गॉट अ ट्रेनिंग, कंप्लीट ट्रेनिंग शेड्यूल। वी इंश्योर डेट कि वो ट्रेनिंग शेड्यूल पूरा हो और सारे एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग मिले। वी इंश्योर डेट सर, जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं हम उनको ट्रेन करते हैं सर बायोमेडिकल वेस्ट हैंडलिंग में। It's very bad, यार। Anyway, have you started the Yes, process sir. We have started the prophylaxis? prophylaxis. चलो, let's hope for the best. चलो, let's go. सर मैं ठीक तो हो जाऊंगा सर? देखते हैं, हाँ, कोशिश कर रहे हैं, दवाई तो मिल रहा है आपको। We will see, ठीक है? चलो आप रेस्ट करो। सर मैं मरना नहीं चाहता सर। Let's hope for the best. We'll see. Just take a look at what's happening. कम सर। सर 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 मुझे बचा लो सर। सर 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 मैं मरना नहीं चाहता सर। सर सर सर। अरे क्या हुआ, सपना देख रहा है क्या? अभी यहाँ डॉक्टर थे ना? कभी डॉक्टर कभी सर, सपना देख रहा है क्या भाई? चला जा, बहुत काम पड़ा हुआ है। नींद में बड़बड़ाता रहता है, सोता रहता है। ऑन ड्यूटी आके ड्यूटी ऑफिसर से कंप्लेन करूंगा तेरी, जब पता चलेगा तुझे। हेलो। नमस्कार। नमस्कार। तुम तो टोटो हो ना, हमारे एम्स के स्वच्छता मैस्कॉट? ठीक पहचाना। पर तुम तो वहां पोस्टर। मैं दीवारों पर ही नहीं बल्कि पूरे एम्स में घूमता रहता हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरे सामने हो। तुम मुझे एम्स की एनसाइक्लोपीडिया ही समझो। जब कोई कंफ्यूज होता है या सुधरने की बात करता है तो मैं उसे दिख जाता हूँ। पर मुझे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब जब मैंने तुम्हें सपने से जगा दिया तो तेज बन रहे हो। थोड़ी देर पहले तो सर मुझे बचा लीजिए, भीगी बिल्ली जैसी हालत थी तुम्हारी। पर तुम्हें मेरे सपने के बारे में कैसे पता? उसे छोड़ो, मगर सपने में तो तुम काफी कंफ्यूज और डरे हुए लग रहे थे। टोटो, मुझे इस सपने ने डरा तो दिया ही है, साथ साथ जगा भी दिया है।
अब मैं गलती से भी गलती नहीं करूंगा, पर औरों का क्या? कई बार डॉक्टर और नर्स भी तो जल्दबाजी में गलती करते हैं और हम उनको कुछ बोल भी नहीं पाते। देखो, जल्दबाजी या लापरवाही को तो मैं ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि वो तुम्हें या औरों को खुद ही ठीक करना होगा। हाँ, अगर बायोमेडिकल वेस्ट या अलग अलग कलर के बीन्स को लेकर कोई कंफ्यूजन है तो वो मैं दूर कर सकता हूं। हाँ, यही तो प्रॉब्लम है। डस्टबिन में अलग अलग तरह का वेस्ट डालना आसान काम नहीं है। देखा है कितना और कितने तरीके का मेडिकल वेस्ट होता है हमारे यहाँ। मैं समझ सकता हूं। अरे ओ नीले पीले डब्बो, जरा बताओ तो, हॉस्पिटल में कितने तरह का कचरा होता है? हाँ? हॉस्पिटल में 4 तरह का कचरा होता है सरदार। सुन लिया ना जितेंद्र बाबू? हाँ, ये तो मुझे पता है, पर प्रॉब्लम ये है कि किस बिन में क्या डिस्पोज करना है, ये कैसे याद रहे? जिम्मेदार डब्बों, समस्या क्या है सुन लिया ना तुम लोगों ने? हाँ सरदार। हाँ सरदार नहीं, तरीका अपनाओ असरदार। अरे तो अब शुरू हो जाओ। मैं हूँ वाइट यानी कि उजला, नीडल सुई शार्प, कुछ भी हो नुकीला, सब ऐसा वाइट का ही है झमेला। बहुत अच्छे। आईवी नली, प्लास्टिक, थैली थैला, सब लाल में ही है धकेला। ओह क्या भूले, क्या गलती हुई? सिरिंज बिना सुई। यस। क्या बोले भाई? मायो पीला, प से पीला, प से पट्टी। नहीं, अपुन ऐसे बोलेगा, टिश्यू कटेला फटेला, खून से सनेला, पुरानी दवाई का हो झमेला, या केमिकल का लोचा, इसका उपाय सोचा तभी तो पीला लगाया। समझे मेरे भाया? समझे? हाँ हाँ। अब आई मेरी बारी। अच्छे से कर लो जांच, नीले में हो शीशा और कांच। समझे? शाबाश। हाँ, अब तेरा क्या होगा रे कालिया? तुम्हारे लिए अलग से कार्ड बनवाऊं क्या? नहीं 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 सरदार, दरअसल हम इस बिरादरी में नहीं हो ना, पर हम काले हैं दिल वाले हैं, म्यूनिसिपैलिटी का जनरल वेस्ट ले जाने वाले हैं। सरदार। अब समझे आप, या अभी भी मन में है कोई डाउट? नहीं नहीं, अब नहीं है कोई डाउट, कंफ्यूजन सारी हो गई है आउट। टोटो खुश हुआ। देखिए, जितेंद्र को तो इस समझदारी के लिए डर का सामना करना पड़ा। कहीं आप भी ऐसे किसी डर या हकीकत का वेट तो नहीं कर रहे हैं ना? अस्पताल का काम लोगों की जिंदगी बचाना है, परंतु अस्पताल कर्मियों की जल्दबाजी व लापरवाही से खुद की व मरीजों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। इसलिए ये जरूरी है कि जाने अनजाने में होने वाली गलतियों को नियंत्रित किया जाए। इससे हम, हमारे मरीज स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे, हमारा हॉस्पिटल भी स्वच्छ रहेगा। आई एम टोटो, स्वच्छ एम्स इज माय मोटो। स्वच्छ एम्स, स्वस्थ भारत।
ओके सो आई होप कि सबको कुछ समझ में आया होगा एंड इट वाज द इंटरेस्टिंग वीडियो एंड इसमें कुछ एरर है विच आई विल टेल यू कि बिकॉज ये वीडियो थी जो पुरानी गाइडलाइंस के टाइम पे बनाई गई थी बट द लेटेस्ट गाइडलाइन सेज जनरल वेस्ट इज ऑफ ब्लू कलर राइट. तो इसमें जो जनरल वेस्ट दिखाया गया था दैट वाज ऑफ ब्लैक कलर एंड दैट बिकॉज ऑफ द ओल्ड टाइम आवर ओल्ड गाइडलाइंस उस टाइम पे शूट किया गया था बट एवरीथिंग इज सेम नाउ एंड नाउ जनरल वेस्ट विल बी लाइक will be discarded in the blue color, light blue. Okay. Am I audible to everybody? Yes, ma'am. Yes, ma'am. There was the सो एज आई टोल्ड यू कि जैसे जैसे गाइडलाइंस जो थी वो चेंज होती गई अपडेट होती गई तो उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने कलर कोडिंग्स जो है उसको भी चेंज किया लाइक पहले जनरल वाज ब्लैक इफ यू रिमेम्बर प्रीवियस टाइम और अब नई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जनरल वेस्ट ब्लू हुआ उसके बाद फिर वेट और जो ड्राई वेस्ट है उनके कलर कोडिंग चेंज होके ब्लू एंड ग्रीन अलग अलग हो गए राइट. सो ऐसे ही बहुत सारी गाइडलाइंस जो है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से चेंज हुई है. पहले हम लोग इवन ग्रीन वेस्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग बहुत पहले लाइक इन द अर्लियर पीरियड्स हम लोग ब्लू जो ब्रोकन क्लासेस थे उसको हम ग्रीन में किया करते थे. आई डोंट नो वेदर समवन रिमेम्बर और नॉट बट आई नो इन माय पीरियड इट वाज डिस्कार्डेड इन ग्रीन बट नाउ जैसे जैसे कोविड आया और फिर और भी कई कई इन्फेक्शंस आते रहे नई नई गाइडलाइंस बनती रही तो सारी कलर कोडिंग्स जो है change hoti gayi and now for now the updated guidelines for general waste is blue for dry waste green for wet waste biomedical waste में updated guidelines में yellow for human anatomical waste red for infected plastic dark blue for dark blue cardboard box it is for the broken glasses and then your white puncture proof container is for needles syringes and sharps. Okay, so it's very clear cut सब कुछ एकदम क्लियर है. साइटोटॉक्सिक ड्रग्स में ये होता है कि जिनको कीमोथेरेपी चल रही है या कोई ऐसे पेशेंट्स है जिनको रेडियो एक्टिव मेडिसिन चल रही हैं उनके जो सेग्रीगेशन होगा वेस्ट का कलर कोडिंग विल बी द सेम बट इट शुड बी सेग्रीगेटेड इन द सेपरेट बॉक्स अलग कलर के अलग बॉक्स में उसको सेग्रीगेट किया जाएगा. अगर ह्यूमन एनाटॉमिकल है तो येलो में ही जाएगा अगर उसके वायल्स हैं या कुछ ब्रोकन एम्प्यूल्स हैं ग्लासेस है उसको ब्लू में ही डाला जाएगा बट इन अ सेपरेट बॉक्स अलग से कॉमन वाले में नहीं और उसको लेबल किया जाएगा साइटोटॉक्सिक ड्रग्स के साथ में और उसके साथ में बायोहजार्ड का सिंबल होगा. सो the reason behind is that chemotherapeutic है highly radioactive होती हैं radiations होती हैं उसमें और वो किसी को harm भी कर सकती हैं. That's why we can treat them differently. And now I'm going to tell you some of the common tips and before that yes I have to tell you something about the biomedical waste management during the COVID. Everybody knows COVID-19 pandemic है ना it was everywhere there और सबको पता है कि उस टाइम पे कई गाइडलाइंस जो है वो चेंज भी की गई थी. सो आई विल जस्ट ओपन वन ऑफ द पार्ट ऑफ दैट स्लाइड ताकि आपको उसका कुछ आइडिया हो. I don't know whether I have the slide. Okay, so I'm not getting that slide right now. Okay, so let me tell you कि COVID-19 के टाइम पे अलग से कुछ updated guidelines आई थी वो मैं आपको थोड़ा सा brief बता दूंगी. You can just write it down on your paper. ठीक है आप किसी में आप इसको लिख लीजिए नोट डाउन कर लीजिए बिकॉज हमने अब देखा कि फर्स्ट वेव सेकेंड वेव में हमने उसको उन गाइडलाइंस को फॉलो किया एंड थर्ड वेव इज अबाउट टू कम. आई जस्ट होप एवरीबडी होप्स इट शुड नॉट कम अगेन बट as people saying कि it might come है ना and उसके लिए हमें क्या क्या precautions लेने चाहिए किस किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए particularly for the biomedical waste management what we have to take care about and I'll let you know this. तो कोविड के टाइम पे पहले की गाइडलाइंस जो थी उसमें ये था कि
कोविड-19 का सारा वेस्ट जो था वो येलो में ही डिस्कार्ड होता था। When COVID was first arrived, फर्स्ट वेव जब आई थी, तब न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग डबल प्लास्टिक में वेस्ट को डाला जाता था। हर एक जहाँ पे भी कोविड वाले एरिया में जो भी वेस्ट है वो उसमें डबल लाइनिंग होनी चाहिए थी प्लास्टिक की, एक पॉलिथीन नहीं बल्कि 2 पॉलिथीन होनी चाहिए थी, और सब कुछ येलो में डाला जाता था। इधर इट इज इन लाइक एक्सक्लूड शार्प्स, ओके, शार्प्स को आप एक्सक्लूड करो, बाकी आपके जो भी प्लास्टिक है, येलो वाला है, जनरल है, वेट है, ड्राई है, whatever waste was there, everything was segregated in the yellow one except the sharps and broken glasses, ठीक है। तो ये गाइडलाइंस हुई, लेकिन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट जो था वहां पर वेस्ट को ट्रीट करने के लिए उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स हुई। दैट्स व्हाई वी आर जस्ट फॉलोइंग दिस कलर कोडिंग गाइडलाइंस। तो उनको वो ट्रीट करने के लिए खुद से हैंड से सेग्रीगेट करना पड़ा, उनको छांटना पड़ा, उसमें से हटाना पड़ा प्लास्टिक को अलग, क्योंकि ट्रीटमेंट तो डेफिनेटली उसका सेम ही रहेगा, राइट। तो इसीलिए इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए ये 2016 में चला था। उसके बाद 2019 में एक न्यू गाइडलाइंस आई, उसमें ये बोला गया था no, I'm talking about sorry 2019 में 2019 में स्टार्ट किया गया था। उसके बाद 2020 में न्यू गाइडलाइंस आई, जिसके अकॉर्डिंगली ये बोला गया कि आपके सारा कोविड का भी जो वेस्ट है वो सेम वही कलर कोडिंग्स में सेग्रीगेट होगा जैसे कि नॉर्मली होता है, बट द ओनली थिंग इज दैट कि इसको डबल प्लास्टिक में सेग्रीगेट करना है। ऑल द बिन्स शुड कैरी द डबल प्लास्टिक्स। अगर जनरल है तो उसको जनरल में ही किया जाए, येलो वाला है तो येलो में ही हो, रेड वाला है तो रेड में ही हो, लेकिन सबकी डबल लाइनिंग होनी चाहिए। और उसको डिस्कार्ड करते समय पूरे पीपी किट के साथ में, इंक्लूडिंग योर डांगरी ऑल्सो, योर गाउन्स, योर मास्क, योर कैप, योर फेस शील्ड, एवरीथिंग यू शुड वेयर व्हाइल हैंडलिंग दोस वेस्ट। और उसके बाद उसको सील करके प्रॉपरली सील करना है, और उसके ऊपर आप एरिया का नाम लिखेंगे, आपका हजार्ड बायोहजार्ड का सिंबल होगा, प्लस आपको उसमें कोविड का स्टिकर लगाना है, कोविड-19, सो दैट हमें ये पता रहे जो उस को ट्रांसपोर्ट कर रहा है या जो लेके जा रहा है, क्योंकि कुछ हॉस्पिटल्स थे जो पूरे कंप्लीटली एंटायरली कोविड पेशेंट्स के लिए डेडिकेटेड थे, लेकिन कुछ हॉस्पिटल्स को पार्शियली डेडिकेटेड बनाया गया था। इफ यू रिमेम्बर कि कुछ कुछ हॉस्पिटल्स थे जिसमें कोई पर्टिकुलर एरियाज थे जहाँ पे कोविड पेशेंट्स आते थे या सस्पेक्टेड आते थे, और बाकी पे नेगेटिव भी आया करते थे। सो इन दैट एरियाज जहाँ पे ये कंफ्यूजन थी, जो पूरा कोविड है तो उसमें तो एक ही गाइडलाइन चलेगी, जहाँ पे पार्शियल है, जैसे कि हमारा हॉस्पिटल, इट वाज प्रीवियसली हमारे हॉस्पिटल में क्या था, पार्शियली कोविड बनाया गया था। तो उसमें क्या किया था हमने कि बीइंग एन आईसीएन, मैंने जो कोविड का जो एरिया था वहां पर इन चीजों का ध्यान रखा गया कि वो जो वेस्ट है अलग से कोविड के स्टिकर के साथ जाए, डबल लाइनिंग में हो, और जो उसको हैंडल कर रहा है वो अलग से डेडिकेटेड स्टाफ था जो फॉर अबाउट अ वीक और अ मंथ इट वाज डेडिकेटेड फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया ओनली। ओके, हमने उनको किसी नॉन कोविड एरिया में शिफ्ट नहीं किया, उनको अलग कोविड एरिया में ही रखा, उनको प्रॉपर लीव्स दी, उनको पीपीज के साथ हम लोगों ने उनको मतलब लाइक वी एनकरेज देम टू वेयर द पीपीज, एंड वी प्रोवाइडेड देम एक्स्ट्रा हैंड सैनिटाइजेशन मटेरियल्स एंड एवरीथिंग, ताकि वो बार बार हाथ धोए, उनको काउंसिल करा। So this is what we were doing. So there was no difference in the current updates में, biomedical waste management COVID में और common में कोई difference नहीं है, only two things are there. The first is double lining should be there in the COVID time, and COVID sticker should be placed on that waste. ओके, उसमें आपको कोविड स्टिकर लगाना है ताकि वो अलग से ट्रीटेबल हो, उसको पता चले, और पीपीई तो डेफिनेटली पहननी है। कॉमन उसके लिए आपको सिंगल लाइन प्लास्टिक रहेगी, कोविड के स्टिकर नहीं बल्कि आपको वार्ड का स्टिकर ये सब लगाओ, और उसके बाद उसके पीपीई में आपको ग्लव्स, मास्क और योर एप्रन, दिस मच इज इनफ, यू डोंट नीड टू वेयर ऑल दैट अटायर। ओके, so this was the difference in the COVID biomedical waste and the common one. But the main thing which we are focusing in this is that कि we have to segregate the waste properly. As you've seen in the video, आपने वीडियो में क्या देखा कि किस तरह से डॉक्टर्स या नर्सेज ने प्रोसीजर करते समय ये नीडल्स को, शार्प्स को ऐसे ही छोड़ दिया था। So whenever I go to the round, I'm really very particular about this. मैं हमेशा ना अपना कैमरा ऑन करके रखती हूँ, you know, whenever I see all such stuffs,
जैसे स्टाफ है, आई नो दे आर वेरी बिजी, दे आर लाइक दे हैव लॉट ऑफ वर्क प्रेशर, है ना, लेकिन ऐसे टाइम पे भी आप लोगों को वेस्ट को ऐसे नहीं छोड़ना है। एंड बीइंग एन आईसीएस इट्स योर जॉब कि आप अपने स्टाफ को बताओ कि वो लोग वेस्ट के लिए अलग से ट्रे में सारा मिक्सिंग ऑफ वेस्ट ना रखे, सिरिंज नीडल के साथ ऐसे खुली हुई एकदम लाइक स्वॉर्ड, यू नो, इट्स जस्ट केप्ट लाइक दैट ओनली। और कॉटन भी उसी में है, रैपर्स भी उसी में है, प्लास्टिक भी उसी में है, सब कुछ उसमें मिक्स्ड है। एंड व्हेन यू आर गोइंग फॉर द सेग्रीगेशन टाइम, जल्दी जल्दी में अगर बाई चांस सेग्रीगेशन हो रहा है, यहाँ पे तुम्हारी फ्रेंड ने तुम्हें बुला दिया, आवाज लगा दी कि भाई सुन ये बात है, ये वो पेशेंट बुला रहा है, ऐसा है, ध्यान उधर है और सेग्रीगेशन चल रहा है और बाय मिस्टेकनली नीडल चुप गई एंड शी गॉट दी एनएसआई। एंड अनफॉर्चुनेटली अगर वो पेशेंट जो है वो विंडो पीरियड में रहा या फिर वो हेपेटाइटिस बी सी एचआईवी पॉजिटिव निकला, दैट वाज द, माय गॉड, दैट वाज द हॉरिबल थिंग, यू नो। तो इसीलिए ये छोटी सी मिस्टेक जो है इतना बड़ा लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। अभी हम लोगों को पढ़ते समय लगता होगा कि इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ एजुकेशन, बट नो, जिसको ऐसा हुआ है, जिसने फेस किया है, जस्ट आस्क दैट पर्सन हाउ डिफिकल्ट दैट सिचुएशन इज कि किसी पर्सन को अननोइंगली विदाउट एनी रीजन हेपेटाइटिस सी गिफ्ट में मिल गया, हेपेटाइटिस बी गिफ्ट में मिल गया, एचआईवी मिल गया, विच वाज लाइफ थ्रेटनिंग, जो उसका लाइफ स्पैन कितना लंबा जाना था, कहाँ उसने 80-90 साल तक जीना था और कहाँ वो इतने ही कम एज में ही इज अबाउट टू डाइंग। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस small mistake of not also of his mistake, for the others, किसी और की हुई गलती की वजह से। ये जो वायरल मार्कर्स हैं, HIV, हेपेटाइटिस बी एंड सी, दीज आर नॉट ओनली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड और ब्लड ट्रांसमिटेड, ऐसा नहीं है। नीडल्स के थ्रू भी हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। सो इसीलिए इट्स ये, और ये सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं, पेशेंट्स के लिए, दूसरे लोगों के लिए भी खतरा है, यू नो। वी आर डीलिंग विद द पेशेंट्स, वी आर मोर प्रोन टू गेट दैट इन्फेक्शन, बट हमारी मिस्टेक की वजह से हाउसकीपिंग स्टाफ्स कैन आल्सो गेट दैट इन्फेक्शन, राइट। जो उसको ट्रीट कर रहे हैं वो भी, उनको भी मिल सकता है, डॉक्टर्स को भी मिल सकता है, किसी को भी मिल सकता है। सो इट्स आवर जॉब कि हम इसको अच्छे से हैंडल करें, हम ध्यान रखें। So I'll tell you कि whenever I go to the rounds, first of all I check for the hand hygiene, hand hygiene अच्छे से की है कि नहीं, उसके movements अच्छे से किए हैं या नहीं, okay, whether staff is doing it properly or not, either with a hand rub or a hand wash, whatever, but करे। मैं उसकी चेकलिस्ट साइन करती हूँ, देखती हूँ, एंड आई असेस एवरीबडी इंक्लूडिंग योर डॉक्टर्स, नर्सेस, टेक्नीशियंस, नर्सिंग एड्स, हाउसकीपिंग, एवरीबडी, फिजियोथेरेपिस्ट, सारे लोग उसमें आते हैं, ठीक है। एंड उसको चेक किया, किसी ने अगर अभी जैसे रक्षाबंधन गया, एंड डेफिनेटली रक्षाबंधन के बाद जन्माष्टमी तक देयर इज अ ट्रेंड ऑफ वेयरिंग दीज होली थ्रेड्स एंड धागास एंड राखीज एवरीवेयर, एवरीथिंग इन योर हैंड्स। I can understand that these are the rituals, but those who are working in the critical area, जो nurses हैं, उस टाइम पे कोई भी ये rituals वगैरह ये सब नहीं होते हैं। You should be strictly compliant with this thing. आपको ये पता होना चाहिए कि जो चीज नहीं है, so it's a strict rule. अगर आपका ये ritual है, you can just wear it in your neck और upper hand, पैर में, जहां मर्जी, but not on this arm. Why? Because ये हमारा हाथ जो है पूरा सारे काम में कीन है, इसी में, इसी ये इन्वॉल्व है पूरा। और आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक इन्फेक्शन जाना इज वेरी वेरी इजी, इट्स वेरी कॉमन। सो दैट्स व्हाई थ्रेड्स, रिंग्स, होली थ्रेड्स, बैंगल्स, एंड स्पेशली फॉर गर्ल्स, आर्टिफिशियल नेल्स, एक्सटेंडर्स, व्हाटएवर, ये सब नहीं होने चाहिए। जहां आप देखो वहीं आपका काम है उसे टोको। व्हाट आई यूज्ड टू डू, पहले मैं उनको प्यार से टोका करती थी, नहीं सुना, एक बार हो गया, 2-3 दिन बाद देख रही हूँ फिर है। करवा चौथ आने वाला है, उससे 1 हफ्ते पहले गर्ल्स आर रेडी विद देयर नेल्स, ओके, चुप चुप के अपना नेल्स बढ़ाना, ये करते हैं प्रैक्टिस। एंड आई नो इट्स फन, आई कैन अंडरस्टैंड कि इट्स इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में सबके, बट इट्स, we cannot just compromise this thing with the patient's life. पेशेंट की लाइफ के साथ हम इसे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। See, even I, being an ICN also, my hands are like this always. I never wear a single ring, I never put a nail paints, nothing. Why? ये इतने हाईली इन्फेक्शियस है कि इसके थ्रू ये जो कैरियर बन जाते हैं ना, इसके थ्रू ये इन्फेक्शन हम पेशेंट को तो दे ही रहे हैं। और वही सेम चीज, अब आपने अगर रिंग पहन के या फिर थ्रेड वेड पहन के आप काम कर रहे हैं, आई हैव सीन आफ्टर रक्षाबंधन, एक दिन फिर भी मैंने छोड़ दिया, चलो आई विल नॉट गो इन द राउंड, लेट देम सेलिब्रेट। एक दिन के बाद व्हेन आई विजिटेड,
it, everybody was wearing, including girls, everybody were wearing this threads and rakis, and they were just handling the patient. और एक लड़की gloves पहने है, यहाँ तक gloves पहने हैं, उसका राखी यहाँ तक है, and उसका thread इतना लंबा लटक रहा है, and she was doing suctioning on that what do we call it, tracheostomy में she was doing suctioning, और उसका वो thread उस particularly tracheostomy tube के secretions जो आ रहे हैं उस पर touch हो रहा है, and it was so horrible. मैं तो देख के हैरान हो गई कि what is that, मतलब वो खुद भी क्या इन्फेक्शन ले रही है हाथ में और पेशेंट को भी क्या इन्फेक्शन दे रही है. कैन यू इमेजिन? छोटी सी चीज है, बट वो छोटा सा इन्फेक्शन, इट कैन बी योर ई कोलाई, क्लेप्सिला निमोनिया, स्टेफाइलोकोकस, सूडोमोनास, एसिनोबैक्टर्स, एनीथिंग. अगर माइल्ड एरोबिक स्पोर्स भी क्यों ना हो, कैंडिडा भी क्यों ना हो, कुछ भी हो, इन्फेक्शन इज इन्फेक्शन. वो पूरे बॉडी में फैल जाए और उसके थ्रू वो ब्लड में फैल जाए, तो आप चाहे कितने भी नैरो से नैरो स्पेक्ट्रम आप एंटीबायोटिक पेशेंट को दे दो, इट वॉन्ट वर्क. एंड इवन इफ इट इज वर्क ऑल्सो, पेशेंट विल बिकम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाएगा, उसको एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी आगे चल के, एंड देन ही विल बी मोर प्रोन टू गेट द इन्फेक्शन. छोटी सी चीज है लेकिन आगे चल के आगे की लाइफ को वो खराब कर देती है. So अब मैं क्या करती हूँ, I always carry a scissor and a nail cutter in my pocket. Wherever I see any staff having the long nails or wearing all these stuffs, I just give them with a smile कि please cut it down right now in front of me. And they have to. We have to be strict in our rounds. So हमारा काम है, ICNs का यही काम होता है. We act like a villain, you know. हम हॉस्पिटल के villains होते हैं, हमें कोई पसंद नहीं करता है. ICNs जब राउंड में आते हैं या तो लोग भाग जाते हैं इधर उधर हमें देख के, या फिर हमसे कभी कभी लड़ाइयां भी हो सकती है. They might say कि my God, she always just keep on saying something to us, but you know that is the truth. हम उन्हें इन्फेक्शन कंट्रोल कर रहे हैं, और सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं, उनके फैमिली के लिए भी. अब अगर वो सेम सारा इन्फेक्शन, अब वो जो थ्रेड की मैं बात बता रही थी, अब उसने पेशेंट को तो दिया ही दिया, अब वो घर गई होगी, उसने कौन सा थ्रेड धोया होगा, हाथ ही तो धोए होंगे. घर गई होगी, घर में बच्चा है, बुजुर्ग लोग होते हैं, वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, उनकी इम्यूनिटी कैसे कॉम्प्रोमाइज्ड रहती है आपको पता है. एंड दे माइट गेट इन्फेक्शन थ्रू हर. उसकी एक छोटी सी नेग्लिजेंसी की वजह से उसने अपने घर वालों को भी इन्फेक्शन दे दिया और पेशेंट को भी, और खुद भी लिया. सो दैट्स व्हाई इट्स आवर जॉब टू आस्क देम टू रिमूव ऑल दीज स्टफ्स. उसके बाद आता है आपका क्लीनिंग डिसइंफेक्शन पर्टिकुलर हो, आपके हाउसकीपिंग जो है, जो भी आपके क्लीनिंग प्रोटोकॉल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली प्रॉपर क्लीनिंग कर रहे हैं, उसको चेक करने के लिए व्हाट आई यूज्ड टू डू इज सर्विलेंस. हाउ? एयर कल्चर्स, वाटर कल्चर्स, एंड देन हैंड कल्चर्स लेती हूँ मैं, तो डॉक्टर्स का भी हैंड कल्चर लेती हूँ. आई आस्क देम कि सर प्लीज अलाउ मी टू टेक योर हैंड कल्चर लिया जाता है. एंड देन फॉर द स्टाफ्स आल्सो, एंड देन सरफेस कल्चर में आप किसी का भी कल्चर ले सकते हो, आपके टेलीफोन का, कीबोर्ड, माउस, योर नर्सिंग काउंटर. इवन आई टेक कल्चर्स फ्रॉम द सक्शन जार्स एंड O2 humidifiers also, just to check whether they are clean or not. वेंटिलेटर की ओपनिंग्स जहां से आपका ऑक्सीजन आता है, उधर में से भी, पेशेंट की बेड साइड से, रेलिंग से, wherever you want, whatever place you like, you can just take the culture. The reason behind this is that कि वो कल्चर लेके आपको पता चल जाता है कि वहां पे क्लीनिंग डिसइंफेक्शन कितने लेवल पे हो रहा है. ओके उसके बाद क्लीनिंग डिसइंफेक्शन के बाद में आपका आता है बायोमेडिकल वेस्ट. तो मैं ये चेक करती हूँ, बायोमेडिकल वेस्ट का एक ऑडिट किया जाता है मंथली, और उसमें हम लोग यही चेक करते हैं कि वेदर योर डस्टबिन्स आर प्रॉपरली फुट ऑपरेटेड और नॉट. फुट ऑपरेटेड होने चाहिए, लिड उसका बंद रहना चाहिए. कई बार होते हैं कि डस्टबिन हाथ से ऑपरेटेड, वो भाई फुट ऑपरेटेड नहीं होते हैं, तो स्टाफ उसको हाथ से खोलते हैं, कूड़ा डाला, बंद कर दिया. ऐसा है तो यू हैव टू इन्फॉर्म इट टू योर हाउसकीपिंग मैनेजर और सुपरवाइजर, whoever is available there. आप उनको बोलिए एंड दे कैन जस्ट रिप्लेस इट. आपके जो सारी जो पॉली बैग्स हैं वो प्रॉपरली उसमें फिटेड लगी होनी चाहिए, सेम कलर कोडिंग के, कलर बिन्स भी और प्लास्टिक बैग्स भी दोनों सेम कलर के होने चाहिए. ठीक है, अगर वो बोले कि सिस्टर कोई बात नहीं अभी ये खत्म हो गया आप इसमें डाल दो, नो, please ask them to borrow from the other ward. They can borrow that plastic from the other ward and they can use it, but mixing नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ हमने अगर गलती कर दी तो आगे जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम होगी. ये सब चेक किया, प्लास्टिक टॉर्न तो नहीं है, फटी हुई तो नहीं है. अब आप लोगों ने वेस्ट ठीक से डाला नहीं, वो हम डस्टबिन खोल के चेक करते हैं, देखते हैं कि कहीं आपने प्लास्टिक को येलो में तो नहीं डाल दिया, आपने ड्रेसिंग्स को रेड में तो नहीं डाल दिया, आपने किसी नीडल वीडल को किसी में तो नहीं छोड़ दिया. आपकी जो ट्रे है, इंजेक्शन ट्रे,
उसमें आपके नीडल सेपरेट है, उसके लिए क्या कर सकते हो, वेरी कॉमन थिंग, जो डायनाप्लास्ट का बॉक्स देखा होगा आपने, रेड कलर का आता है, आप उसको एज अ पंचर प्रूफ कंटेनर यूज कर लो। तो आपकी मेडिसिन ट्रे प्रिपेयर की, साइड में वो बॉक्स रखा या कोई एक सेपरेट बॉक्स रखो, उसके अंदर अपने सारे नीडल्स डाला और वहीं के वहीं उसको पंचर प्रूफ में डिस्कार्ड कर दिया। मिक्सिंग नहीं होंगे, आपको अलग से हैंडल नहीं करना पड़ेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइंडिंग में हमेशा लैंसेट का जो पेन होता है ना, ब्लड शुगर चेक करने का पेन, उसको जरूर खोल के देख सकती हूँ। मोस्ट ऑफ द स्टाफ वो उस ब्लड शुगर पेन में लैंसेट जरूर छोड़ते हैं। दिस इज रियली वेरी कॉमन प्रैक्टिस इन एवरीवेयर, इधर इधर वार्ड और आईसीयू, हर जगह पे। सो उसको खोल के चेक किया, अगर वहां लैंसेट है सो आस्क देम टू डिस्कार्ड इट इमीडिएटली। सबसे ज्यादा नीडल स्टिक इंजरी होती है लैंसेट से, छोटी सी नीडल होती है, उसको निकालते समय हटाते समय डेफिनेटली प्रिक हो सकता है। सो उसका एक छोटा सा, एक आपको पता है उसके साथ एक बटन लाइक कैप आता है, उसको फ्लोर पे रखो और उस नीडल को पेन के साथ ही उसके ऊपर जोर से पियर्स करो, वो पियर्स हो जाएगी। अब ये लॉक हो गए, नाउ यू कैन रिमूव इट एंड थ्रो इट इन द पंचर प्रूफ कंटेनर सून आफ्टर द यूज, दैट्स इट। यू शुड नॉट कीप इट ओवर हेयर कि दोबारा यूज हो जाए, दोबारा तो यूज करना ही नहीं है, चाहे सेम पेशेंट भी हो तो भी उसमें दोबारा यूज नहीं करना है। So these were all the common points which you should remember while handling the waste. और अगर नीडल स्टिक इंजरी हो जाए तो नीडल स्टिक इंजरी होने के अदर प्रोटोकॉल्स हैं, वो आई थिंक यू हैव बीन डन इन द प्रीवियस क्लास और मे बी यू विल डू. So this was the end of the class.